यस मैम। ओके, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द एवोल्यूशनरी चेंज इन द पैटर्न ऑफ हार्ट अमंग द इन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो हाउ यू कैन गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपने वहां से स्टार्ट होना है जहां पे आपको बताया हुआ है अबाउट द हार्ट दैट इज प्रेजेंट इन द फिशेस। तो इन द क्लास स्पाइसेस व्हाट काइंड ऑफ हार्ट यू नो अबाउट। तो कहते हैं कि क्लास स्पाइसेस के जो मेंबर्स हैं उनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, वन ऑरिकल इज देयर, वन वेंट्रिकल इज देयर, एंड व्हाट द फिशेस डू। तो कहते हैं कि फिशेस हैव गिल्स एज देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इंस्टेड ऑफ लंग्स। लंग्स की जगह पे उनपे गिल्स प्रेजेंट है। सो व्हेन द वाटर करंट it passes over those gills, okay, which are present in the body of the fish, what happen, these gills as they behave as a respiratory organ, so they are involved in the process of gaseous exchange. Okay, but what about their heart? The heart is only 2 chambered heart, but since these fishes they are living in water related conditions, so their energy demand is also less. So whatever amount of oxygen which is dissolved in water, okay, that much amount of oxygen it is received by their gills, और उसी से वो कहते हैं कि उनके हार्ट जो है वो ब्लड की पंपिंग तो करता है, पर ऐसा नहीं है कि वो कैसा ब्लड है, ट्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, समवट मिक्सिंग इज देयर, पर क्योंकि बिकॉज देयर बॉडी की जो एनर्जी डिमांड है दे आर वेरी लेस, तो इसलिए फिशेस जो है उसमें अगर स्लाइटली मिक्सिंग भी हो जाती है डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपने इस तरीके से लिखना है कि गिल्स जो है उनके पास जो ब्लड है, ठीक है, वो ऑक्सीजन रिसीव कर लेता है एंड दैट ब्लड बिकम द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जब गिल्स जो हैं वो ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना देती हैं तो उसके बाद दैट ब्लड एंटर्स इनटू द ऑरिकल्स and from auricle it later shifted towards the ventricles, and from ventricles this oxygenated blood it finally goes to the cells and tissues. Again the cells and tissues they use this blood, and later again that oxygenated blood it becomes the deoxygenated blood. तो फिर से when the water current it comes, ठीक है, तो उस तरीके से वो कहते हैं गैसियस एक्सचेंज फिर से होता है, गिल्स जो हैं फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाती हैं। तो हर बार ऑरिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंटर करता है, पर वही ऑरिकल जो है जिसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसको रिसीव किया था वही सेल्स और टिश्यूज में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी रिसीव करता है। Okay, but and what is the special case in case of amphibians? You know that a 3-chambered heart is there. So 2 auricles are there. One auricle it receive oxygenated and another auricle it receive the deoxygenated blood. But you know that only single ventricle is there. So both type of blood. Okay, the blood which is present in right auricle, the deoxygenated blood, and the blood that is present in left auricle, it is the oxygenated blood. Both of them simultaneously enter into the ventricle. So as a result, mixing of oxygenated and deoxygenated blood is there. Again, you know that कि amphibians जो हैं they can live in terrestrial condition as well as in aquatic conditions, and when harsh conditions are there on the land, so they mostly undergo their hibernation period. So again, their energy demand is less. So such type of you can say mixing of the blood is not creating very much problems for these animals. Okay, but there is one special case you must know that in case of reptiles, though the heart is a 3-chambered heart, but one of the reptile that is crocodile has a 4-chambered heart. So there is a true separation of oxygenated as well as deoxygenated blood. Okay, and in birds and mammals you know that a true 4-chambered heart is there. So there is a true separation of oxygenated and deoxygenated blood. So as a result, the birds as their flight muscles they require large amount of energy, so no problem is there because oxygenated blood is present in plenty. And similarly the mammals they have to enjoy variety of habitats, and all the habitats they have different kind of conditions. ठीक बेटे, तो इसीलिए वो कहते हैं कि उनकी भी एनर्जी डिमांड सेटिस्फाई हो जाती है मैमल्स की भी, क्योंकि 4-chambered हार्ट है और डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उनका ट्रू सेपरेशन है, लंग्स आर देयर फॉर द ऑक्सीजनेशन. So problem is very easily solved in these advanced animals. Okay, but now question number 9. Why do we call our heart myogenic? ठीक है, तो what do you mean by the term myogenic? Myogenic means auto-regulated. ठीक, तो कहते हैं कि human heart can be called as a myogenic type of organ because all the action potentials that are responsible for contraction of the atria as well as for contraction of the ventricles that are itself generated in the heart. You know that a nodal patch of the cardiac musculature, it is present on the right
auricle at the upper position as well as at the lower position. So a patch of the nodal tissue that is present at the upper position is known as SA node, and the same patch of the nodal tissue that is present at the lowermost position of right auricle, that is known as AB node. So this AB node along with AB bundles, they can easily spread this action potential throughout the cardiac musculature. So as you know, most of the functioning of the heart is regulated by the heart itself. So that's why it is known as myogenic. Okay बेटे, but you know that brain is the control center of your body. So ऐसा नहीं है कि हार्ट जो है वो ट्रू ऑटोजेनिक है, कहते हैं कि कुछ फंक्शंस जो हैं उसके ब्रेन भी रेगुलेट करता है, पर ब्रेन जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है. तो 98% तक आप ले सकते हैं कि हार्ट इटसेल्फ अपनी फंक्शनिंग करता है. तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मायोजेनिक. ओके बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. साइनोएट्रियल नोड इज कॉल्ड द पेसमेकर ऑफ द हार्ट. So you know that sinoatrial node, it is a kind of a nodal patch which is present at the uppermost position of the right auricle, and this sinoatrial node, it produced action potential every time. How many action potentials it generates per minute? You also know it is average of 72. ठीक, तो इसी को हम हार्ट बीट भी कहते हैं. तो अब वो कहते हैं कि जो साइनोएट्रियल नोड है, it generate action potentials for the whole heart, but the atrial contraction, it is directly related with the sinoatrial node, though it is not directly associated with ventricular contraction. It convey the message to AV node, then AV node along with the AB bundles, they later spread the signals, and that is responsible for the contraction of the ventricles. ओके, तो साइनोएट्रियल नोड से ही हर तरह के एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं, चाहे एट्रिया के कंट्रैक्शन के हैं, चाहे वेंट्रिकल के कंट्रैक्शन के हैं. तो इसीलिए हम साइनोएट्रियल नोड को पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं. ओके बेटे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सेम वैसा ही क्वेश्चन है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल? ओके बेटे, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इज अ काइंड ऑफ ए patch of the nodal tissue that is present at the lowermost position of the right auricle, and you know that this atrioventricular node, when they receive the signals from the SA node for the contraction of the ventricle, then this AB node, it finally convey this message to the AB bundles. ठीक है, तो ये AB bundles जो हैं, आपको मालूम है कि this AB bundles, they are actually present between the interventricular septa, and at a particular position these AB bundles, they bifurcate, and each of the bundle it moves towards the two respective chambers of the heart. तो आपको बताया था कि जहां से इनका बाइफर्केशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट पोजीशन इज नोन एज बंडल ऑफ हिज. ठीक है, बंडल ऑफ हिज का वो वाला पार्ट जो किसकी तरफ गया है? राइट ऑरिकल की तरफ गया है, वो राइट बंडल है, और जो लेफ्ट ऑरिकल की तरफ गया है, दैट इज नोन एज द लेफ्ट बंडल. ओके बेटे, एंड लेटर व्हाट यू फाइंड दैट व्हेन दे एंटर्स इनटू द रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स, they are further divided into very fine type of fibers, and which are known as Purkinje fibers. And these Purkinje fibers, they spread this signal in the entire ventricles, and as a result ventricular contraction takes place. So this is the reason that how the AB node as well as the AB bundles, they cause the functioning of the heart, or you can say ventricular contraction. Okay bete, next question देखिए, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 12. Define the cardiac cycle. तो व्हाट आई डू एवरी टाइम, इंस्टेड ऑफ डिफाइन, अगर मैं इसको डिफाइन को हटा दूं तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, तो ये एक 5 मार्क क्वेश्चन बन जाएगा. ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन हम ऐसे बना लेते हैं कि एक्सप्लेन अ कार्डियक साइकिल एंड द कार्डियक आउटपुट. ओके बेटे, देन दिस मींस यू हैव टू डिफाइन द कार्डियक साइकिल फर्स्ट, और उसके बाद आप उसके 4 फेजेस के बारे में लिखेंगे, दैट इज जॉइंट डायस्टॉल, देन यू नो दैट एट्रियल सिस्टोल इज देयर, देन एट्रियल systole के बाद ventricular systole is there, and you know that when ventricles are in systole, this means atrials are in diastole, then फिर ventricles are also in diastole. तो इस तरीके से you have to explain each phase, and you must have to explain the role of the valves in each phase. ठीक है, तो when the atrial contraction is there, you must know that कौन सी valves जो है उन्होंने ओपन होना है. तो आपको पता है राइट साइड पे कौन सी valves हैं? ट्राइकस्पिड है, एंड लेफ्ट साइड पे कौन सी valves हैं? बाइकस्पिड है. तो आपने ये भी लिखना है कि when the tricuspid and the bicuspid valves they open, then a first heart sound is observed, and that is known as lup. Okay बेटे, and when the semilunar valves they open, तो सोचिए semilunar valves कब open होंगी? जब ventricles contract करेंगे. तो ventricles जब contract करेंगे तो उसके बाद वो कहता है कि ventricular contraction के बाद, ठीक है बेटे, क्या होगा? तो ventricular contraction के बाद semilunar valves open होके
राइट वाले वेंट्रिकल्स जो हैं वो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड डाल देंगे एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो हैं वो आयोटा में डाल देंगे, तो आयोटा वाला जो ब्लड है वो सेल्स एंड टिश्यूज को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जबकि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास ले जाएगी फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, दिस मच यू हैव टू एक्सप्लेन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कार्डियक आउटपुट। ठीक है, कार्डियक आउटपुट जो है वो कितना होता है और कार्डियक आउटपुट को कैसे डिफाइन करना है, तो मैंने आपको यहाँ पे अंडरलाइन करने के लिए बोला था, कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है बेटे, कितना रहेगा कार्डियक आउटपुट वो भी आपको मालूम है। तो यहाँ पे देखिए, द कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। ठीक है, हर एक वेंट्रिकल पर मिनट के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है उसको पंप आउट करता है, दैट इज नोन एज द कार्डियक आउटपुट। और एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कार्डियक आउटपुट, दैट इज इक्वल टू 5000 मिलीलीटर और 5 liters. ठीक है, that you have to write here. Okay students, next one is explain heart sound. Explain what is there, then you must have to explain the procedure also. Okay, you know that the first heart sound is known as lup and the second heart sound is known as dup. Then you must have to explain that this lup sound is produced when the atricles they receive the blood. And after when the atricles they receive blood, what happened? They also receive a signal from the sinoatrial node for the contraction of the atria. So when the atrials they contract, what happened? Due to the pressure of the blood which they exert on the septums, so the walls which are present on that septums, they are provided with cups. So due to result of that pressure, these cups they get open. So tricuspid and bicuspid cups, when they get open, then a characteristic sound is produced, and that is the first heart sound. And when this blood it enters into the ventricles, then they also exert a pressure on the ventricular walls, and as a result the semilunar walls that is present on both the ventricles they get open, and as a result the second heart sound is produced, and that is known as dup. Okay, but this much you have to write. अब वो आपको कहता है कि draw a standard ECG. ठीक है, you must know the full form of ECG, that is electrocardiogram, and explain the different segments in it. First you have to draw that diagram. ठीक है, जो डायग्राम हमने ग्राफ वाला ड्रॉ किया था ब्लैक बोर्ड पे, वही डायग्राम हम यहाँ फिर से ड्रॉ करेंगे, that is फिगर नंबर 18.3. उसमें देखिए PQRST, ये सारे अल्फाबेट्स यहाँ पे यूज किए गए हैं, तो you must know the wave P, it is always concerned with the depolarization of the atria, means contraction of the atria. Then QRS complex, it always tells us that it is related with the depolarization of the ventricles, that means the ventricular systole is there. And after this QRS complex, ठीक है, तो वेंट्रिकल जब भी सिस्टोलिक फेस में जाएंगे तो हमेशा सिस्टोलिक फेस में नहीं बने रहेंगे। आपको पता है कि जब वेंट्रिकल्स ने अपना ब्लड जो है वो और एक किस में डाल देना है, पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा में डाल देना है, तो उनका कौन सा फेज स्टार्ट हो जाएगा, डायस्टोलिक फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कि जो टी वेव है वो ये बताती है आपको कि वेंट्रिकल्स नाउ कम्स आउट फ्रॉम देयर सिस्टोलिक फेज एंड नाउ दिस इज द इनिशिएशन ऑफ देयर डायस्टोलिक फेज। ठीक, तो you must have to write what is the significance of P, T letters, and how can you calculate the heartbeat from this graph. You know that the QRS complex, by counting the number of QRS complexes per minute, that will gives you the value of the heartbeat. Okay बेटे, एक और चीज बताई थी, अगर QRS complex जो है उसकी शेप में किसी तरह की डिविएशंस आती हैं, तो दिस मीन्स दैट कि particular person may be affected from some kind of cardiac disorders. तो roughly सभी इंडिविजुअल्स के लिए QRS कॉम्प्लेक्स की शेप और उसका जो एवरेज है वो लगभग सेम रहता है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन हमारे सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो सभी बच्चे जो हैं ऐसे नहीं बोला है आपको एक ही दिन में कर लेने हैं। ठीक है, बड़े आराम से इसको अपनी फेयर कॉपी में करेंगे, क्योंकि जब भी हम कॉपी में लिखते हैं तो हमें फिर से वो चीजें लर्न हो जाती हैं, और दिस इज अ काइंड ऑफ ए रिवीजन। ठीक है, तो सेल्फ रिवीजन के लिए हमेशा हमें एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेने चाहिए। ओके बेटे, अब सब कुछ ठीक है? एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस चैप्टर? ओके, दिस मच इज नाउ कमिंग इन योर एग्जामिनेशन फॉर PT3. ओके बेटे, if still there is any problem regarding any chapter which we have done earlier, ठीक है, it may be plant kingdom, animal kingdom, biomolecules, whatever, कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है तो we will stop the next chapter and we will discuss that topic first, then we will continue. ठीक है, तो आपके पास एक पूरा दिन है, you have to decide कि in which topic you are not properly understanding that topic, you discuss with me, I will explain it again. Okay students,
यस बेटा, एनी प्रॉब्लम स्टिल? चलें फिर आगे? हाँ जी, यस बेटे, अगला चैप्टर देख रहे हैं। मैंने वो चैप्टर इसलिए लिया है बिकॉज अभी हमने हार्ट वाला चैप्टर किया है, तो हार्ट वाले चैप्टर से काफी ज्यादा लिंक रखता है ये वाला चैप्टर। ओके, दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर फर्स्ट एंड आफ्टर दैट वी विल डू रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसमें किडनीज जो है ना उसका भी हार्ट से रिलेशन होता है। तो समटाइम्स यू हैव हार्ट दैट अ मल्टी ऑर्गन फेलियर इज देयर, तो दिस किडनी, लंग्स, हार्ट, ब्रेन, दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। सो इफ वी टेक दिस चैप्टर फर्स्ट, तो हमें अभी हार्ट हमने किया तो इजीली हमें ये लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर एंड दिस इज चैप्टर नंबर 19, excretion and excretory products and their elimination. Okay, all of you please open your book. I am on page number 290 according to the new book. So what we are going to study in this chapter, excretory products and their elimination, we are studying in detail about the human excretory system. ओके बेटे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसके मेजर ऑर्गन्स जो है उनको हम किडनीज कहते हैं। तो यू मस्ट नो कि वन पेयर ऑफ किडनीज जो है वो हमारी बॉडी में डॉर्सल रीजन पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारी बॉडी का जो हमारा बैक वाला पोर्शन होता है उसको हम डॉर्सल पार्ट कहते हैं, तो वहां पे हमारी किडनीज जो है वो प्रेजेंट है। देन वी विल आल्सो स्टडी अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, बॉडी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन दिस प्रोसेस, दैट वी विल स्टडी। Then functions of the tubules. You must know that nephrons, they are the structural and functional units of kidneys. They are the filtering units. And so many other renal tubules, they are also involved in the process of urine formation that we are going to study. Okay, you are well familiar with the terms PCT, DCT, Hanel's loop. ये सारी चीजें मैंने आपको करवाई थी, Bowman's capsule. ठीक बेटे, अकॉर्डिंग टू योर एज उस टाइम मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, पर अब हम उसको और ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए मैकेनिज्म ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। तो कहता है कि ऑलवेज व्हेन द ह्यूमन दे सिक्रेट आउट, यू कैन से दे एक्सक्रीट आउट देयर यूरिन, तो उसका जो यूरिन होता है ना वो एक कंसेंट्रेटेड यूरिन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बॉडी में जितना वाटर गया है सारा ही वाटर जो है उसका लॉस्ट हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। तो कहते हैं कि यूरिन जो है वो हमेशा जो है एक कंसेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर जो है यूरिन रहता है। तो इसीलिए किस तरीके से यूरिन जो है वो कंसेंट्रेटेड यूरिन बनता है, दैट वी विल स्टडी हियर। okay, the next one is how your kidneys and their functions, they are regulated in the body, that is regulation of the kidney function. And what is maturation? Maturation is the process of excretion of the urine throughout your body. And there are some of the other organs that are also present in your body and they are also playing an important role in the excretion. For example, आपकी जो skin है वो भी excretion के अंदर role play करती है। ठीक है, beside this we have so many glands, oil glands are there in your skin. ठीक है, eyes के अंदर भी हमारे जो हैं glands होते हैं, lacrimal glands होते हैं, sweat glands are also there. So what is the role played by these organs, that we will study. And in the last, what you are going to study, disorders of the excretory system. Okay, sometimes your kidneys, they are not properly functioning and some stones are there in your kidneys. So how can we suffer from this kind of disorders and how we do the regular diagnosis for this, that we will study. Okay, but what is given in the introduction? In the introduction, he said that different animals, they excrete out different type of waste products during their metabolic reactions. As you know that when animals, they take their food, what happens? That food is always present in a complex form. और एनिमल्स क्या करते हैं, उन कॉम्प्लेक्स जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं फूड्स के, उनको ब्रेक करते हैं और मेटाबॉलिक रिएक्शंस में उनका जब ब्रेकडाउन होता है तो यू नो दैट एट द एंड ऑफ ईच मेटाबॉलिक रिएक्शन सम ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक, तो हर एक एनिमल जो है उसकी बॉडी में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, इट मे बी अमोनिया, इट मे बी यूरिया, इट मे बी यूरिक एसिड। ठीक है, sometimes you can consider carbon dioxide is also a waste product because your lungs, they involved in the expulsion of this carbon dioxide from your body.
ओके बेटे, इसके अलावा कहता है कि एक्सेस वाटर जो है वो भी आपकी बॉडी में कई बार वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में होता है, एंड इसके अलावा सो मेनी आयंस आर आल्सो देयर, ठीक, एंड देयर करेक्टरिस्टिक अमाउंट इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, सो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सारी चीजें जो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो हाउ दिस वेस्ट प्रोडक्ट्स दे आर जनरेटेड इन योर बॉडी, तो कहते हैं कि समटाइम्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंसेशन, ठीक है, जब आप फूड लेते हैं, जब आप फूड का इंटेक करते हैं, तो समटाइम्स यू ईट मोर, आप ज्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से वो कहते हैं कि सम ऑफ द सब्सटेंसेस, ठीक है, दे आर नॉट प्रॉपर्ली, देयर ब्रेकडाउन इज नॉट प्रॉपर्ली डन इन योर बॉडी, so they are partially or totally their breakdown is done. So at the end of each metabolic reaction, okay, some of the end products they are produced, but these end products they are very much poisonous for your body. If they stay in your body for a longer time, then that will be a critical conditions for your body, so their removal must be required, ठीक है बेटे, we have to eliminate, we have to remove these waste products from the body as they are nitrogenous in nature, ठीक है। तो कहते हैं कि देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम दैट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी फॉर द एलिमिनेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस, ओके बेटे। तो व्हाट आर द दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स, दे आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स, दे मे बी अमोनिया, दे मे बी यूरिया और दे मे बी यूरिक एसिड, ठीक है, एंड देयर एलिमिनेशन दे आल्सो रिक्वायर्ड सम अमाउंट ऑफ वाटर। सो किस तरह के एनिमल्स के अंदर है, उनका हैबिटेट कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है उनकी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। तो कहते हैं कि अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड जो है दे आर द मेजर फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजेनियस वेस्ट दैट इज एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स, एंड अमंग दीज अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म, इसमें से सबसे ज्यादा टॉक्सिक जो है वो अमोनिया होता है। सो देयर एलिमिनेशन ऑलवेज रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक बेटे। तो कहते हैं कि यू नो दैट the evolution of the life it always takes place in water, ठीक है, that you have learned during the evolution of earth, but धीरे धीरे आपने क्या देखा कि एनिमल्स जो है बेशक उनकी जो लाइफ है उसका ओरिजिन वाटर में हुआ है, पर लेटर ऑन दे आर अडेप्टेड फॉर द टेरेस्ट्रियल कंडीशंस आल्सो। तो व्हेन द एनिमल्स दे आर लिविंग इन द एक्वेटिक हैबिटेट्स, then ammonia is their major excretory product, but as soon as these animals they left out their aquatic habitats, they adapted themselves for the terrestrial condition, then instead of ammonia की जगह पे वो कहता है कि यूरिया जो था उसने उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की जगह ले ली, और जो यूरिया था वो उनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया, ठीक है बेटे। सम ऑफ द एनिमल्स दे हैव डन सम मोर एडेप्टेशंस, ठीक है, दे हैव द एबिलिटी टू फ्लाई, तो इस तरह के एनिमल्स जो कि फ्लाई करने लगे उनके अंदर यूरिया जो है उसकी जगह पे क्या आ गया, यूरिक एसिड आ गया, बिकॉज वो एक ऐसे हैबिटेट में रहते थे जिसमें वाटर की जो आप कह सकते हैं अवेलेबिलिटी बहुत कम थी, ठीक। तो वी हैव कैटेगराइज्ड द एनिमल्स इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स दे रिलीज, ओके बेटे। तो देखिए हियर वन टर्म इज गिवन, अमोनोटैलिज्म। व्हाट इज अमोनोटैलिज्म? इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग आउट अमोनिया। तो कहते हैं कि कौन से एनिमल्स हैं जिनके अंदर अमोनिया जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। So there are so many animals which are living in the aquatic habitats. These may be the bony fishes, okay, that belongs to class Ostisthyes, and then we have aquatic amphibians are also there, okay, and some of the aquatic insects. So these all of these animals they excrete out ammonia. So that's why they are known as ammoniothallic in nature. And as you know, ammonia जो है वो water में easily soluble होता है, तो इसलिए कहता है कि by the simple method of diffusion that generally takes place over their body surface or through the gills. As you know that gills are their main respiratory organs in case of fishes. So whenever the water current they pass over the gills, okay, the waste products which is present in the cells of these animals that are easily excreted out, okay, when the water currents they move over the surface. तो इस तरह से वो कहते हैं कि वो सिर्फ गैसियस एक्सचेंज नहीं करते, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है उनका रिमूवल करने में भी हेल्प करते हैं। और कहते हैं कि एक चीज है, when the animals they start living in the terrestrial condition, they develop so many adaptations. So instead of these gills, ठीक है, गिल्स जो है वो फिशेस के अंदर क्या कर रहे हैं, सभी तरह का काम कर रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ एक्सचेंज ही नहीं करे गैसेस का, वेस्ट प्रोडक्ट के रिमूवल में भी इन्वॉल्व है। और उनका वेस्ट प्रोडक्ट है क्या, अमोनिया है। तो अमोनिया माइंस जो है वो इसीलिए वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। तो जब भी वाटर करंट्स पास होती हैं तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में अमोनिया माइंस हैं, दे कैन इजीली डिफ्यूज आउट
from their body. Okay beta, but in case of terrestrial animals, they have specialized type of excretory organs, and these are known as the kidneys. Okay beta, so these kidneys, they are involved in the removal of the less toxic type of nitrogenous waste such as urea and uric acid. Okay, so this is a kind of adaptation because you know that much amount of water is not available in the terrestrial condition, so less toxic nitrogenous waste products are produced in these animals. ठीक है, तो यूरिया एंड यूरिक एसिड जो है ना, उनके रिमूवल के लिए बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं होती, तो इसीलिए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो यूरिया या फिर यूरिक एसिड की फॉर्म में होते हैं. ओके बेटे, तो कहते हैं कि मैमल्स में, एम्फीबियंस में और जो मैरीन फिशेस हैं उनके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिया होता है, इसलिए इन एनिमल्स को वी कॉल दीज एनिमल्स एज यूरियोटैलिक एनिमल्स. ओके बेटे, अब देखिए एक चीज और बताई है उसने कि कुछ एनिमल्स जो है उनमें अमोनिया जो है वो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, बट लेटर ऑन इन द लीवर ऑफ दीज एनिमल्स दिस अमोनिया इट इज कन्वर्टेड इनटू द यूरिया, एंड यूरिया जो है वो इजीली ब्लड के अंदर जो है रिलीज होता है, और फिर ब्लड से जो है इसे फिल्टर आउट कौन करती हैं? किडनीज करती हैं, बिकॉज यू नो दैट किडनीज के अंदर छोटे छोटे से स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स प्रेजेंट है विच आर नोन एज द नेफ्रॉन्स. ओके बेटे, फिर कहते हैं कि यूरिया जो है ऐसा नहीं है कि 100% यूरिया जो है इट इज एक्सक्रीट आउट थ्रू योर किडनीज. Some amount of urea it may retained in the matrix of the kidney so that a proper osmoregulation can be maintained. ठीक है, एक प्रॉपर बैलेंस जो है आयंस का बना रहे, इसलिए थोड़ा बहुत यूरिया जो है वो किडनी के मैट्रिक्स के अंदर हमेशा बना रहता है यूरियोटैलिक एनिमल्स में. ओके बेटे, थर्ड कैटेगरीज जो है वो कौन से एनिमल्स की है? दे आर नोन एज द यूरिकोटैलिक एनिमल्स. एंड यू नो दैट यूरिकोटैलिक एनिमल्स जो है उसमें रेप्टाइल्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, स्नेल्स आ जाते हैं, कुछ इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं. तो ये एनिमल्स जो है उनमें कहता है कि यूरिक एसिड इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैलेट और अ पेस्ट, because you know that these animals they are not taking so much of water. ठीक है, बर्ड्स को हम कभी भी बहुत ज्यादा वाटर लेते हुए नहीं देखते हैं, तो ये ऐसे एनिमल्स जो हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स, so that's why these animals are known as the यूरिकोटैलिक एनिमल्स. तो 3 कैटेगरीज हम याद रखेंगे, मोनोटैलिक, देन वी हैव यूरियोटैलिक एंड देन वी हैव यूरिकोटैलिक. अमोनियोटैलिक में हमेशा एक्वेटिक होंगे, यूरियोटैलिक में टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होंगे, और यूरिकोटैलिक्स जो हैं उसमें जनरली रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो हैं वो खास होते हैं, पर इसके अलावा कुछ स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स भी आ सकते हैं. ओके बेटे, आई एम ऑन नेक्स्ट पेज, and what is given in the first paragraph that different animals they have different type of excretory structures. Okay, तो हर एक एनिमल्स जो है अकॉर्डिंग टू देयर साइज उसके अंदर अलग अलग तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है. तो इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, अगर हम इनवर्टिब्रेट्स को लेते हैं, as you know that they are the primitive type of organisms, so this means their excretory organs they are also not advanced, they are the simple type of tubules like structures. Okay, so some tube-like structures are there, and these tube-like structures they are generally behaving as their excretory organs. And if we are talking about the vertebrates, then you know that these vertebrates they are the advanced ones, so they have complex tubular organs which are known as the kidneys. Okay बेटे, और इसके अलावा कहते हैं कि अगर हम बात करते हैं कौन से फाइलम की, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थ्स की, जिसमें कौन से आ जाते हैं? फ्लैट वॉर्म्स आ जाते हैं. तो फ्लैट वॉर्म्स के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो फ्लेम सेल्स या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं. ठीक है, तो ये आपने लर्न कर लेने हैं, बिकॉज 1 मार्क क्वेश्चन हम यहाँ से फ्रेम कर सकते हैं कि व्हाट आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ द फ्लैट वॉर्म्स. देन यू मस्ट नो दिस मे बी प्रोटोनेफ्रीडिया और यू कैन से फ्लेम सेल, बोथ आर करेक्ट. ओके बेटे, इसके अलावा रोटिफर्स के अंदर भी इस तरह के जो है आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नजर आएंगे, एनालिड्स में, सेफेलोकॉर्डेट्स में. ठीक है, तो प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो दोनों तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक्सक्रीशन का ही वर्क नहीं करते हैं, दे आर आल्सो इन्वॉल्वड इन मेंटेनिंग द आयोनिक बैलेंस एंड दैट इज नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन. ठीक है बेटे, वी ऑलवेज यूज एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन टर्म साइमल्टेनियसली, समटाइम्स इंटरचेंजेबली. तो हमेशा याद रखिए कि एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, whereas osmoregulation is a mechanism of the body where the specific ionic concentration it is maintained in the body. Okay bete,
The next is anephtheridia. So what is anephtheridia? They are the tubular excretory structures of अर्थवॉर्म्स को कह सकते हो आप, या फिर और दूसरे जो एनालिड्स हैं, चाहे वो लीच है चाहे वो निरीस है। तो अर्थवॉर्म जहाँ एनालिड्स में निरीस या फिर लीच के अंदर जो है कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को हम नेफ्थ्रीडिया कहते हैं। ठीक है, तो नेफ्थ्रीडिया जो है दे आर इन्वॉल्वड इन द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स, दे आर आल्सो मेंटेनिंग फ्लूइड एज वेल एज आयोनिक बैलेंस इन दैट। ओके बेटे, व्हाट आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ द इंसेक्ट्स? दैट मींस कि क्लास हमारे पास जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है जिसमें क्लास इंसेक्टा आ जाती है, तो उसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो मालफिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। मालफिगियन ट्यूब्यूल्स जो हैं उसको आप किडनीज की प्रीलिमिनरी फॉर्म्स कह सकते हो। तो ये मालफिगियन ट्यूब्यूल्स जो है इट इज इन्वॉल्व्ड in the removal of the nitrogenous waste also as well as osmoregulation, that is maintaining the ionic balance. Okay बेटे, इसके अलावा कहता है कि अगर आप क्रस्टेशियंस में आ जाते हैं तो उसमें प्रॉन्स आपके पास आ जाते हैं। तो प्रॉन्स जो है उनके अंदर ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर आप उसको एंटीनल ग्लैंड्स भी कहते हैं, एंड दे आर देयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ठीक है बेटे, अब हम सीधे ही ह्यूमंस के ऊपर आ जाएंगे। तो कहते हैं कि ह्यूमंस दे कम्स अंडर द कॉर्डेट्स and they are the advanced multicellular organism, and there is a division of labor among the body of human beings. So इसलिए जो humans हैं उनके अंदर एक well developed excretory system present है। तो humans के अंदर excretory system जो है वो excretion और osmoregulation से related होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम नजर आ रहा है। तो in case of human beings, what are the organs that are present in the excretory system? So we as a human have one pair of kidneys. Okay बेटे, one pair of kidneys they are present in the dorsal region of your body, and from these kidneys, हर एक किडनी को ध्यान से देखिए, उसमें से one pair of ureters जो है वो राइज हो रहे हैं। ईच किडनी में से एक यूरेटर आपको राइज होता नजर आ रहा है। देन उसके बाद both the ureters they join together in the urinary bladder. तो यूरिनरी ब्लैडर जो है उसको वो ज्वाइन करते हैं, एंड देन यू सी दैट यूरिनरी ब्लैडर की जो ओपनिंग है डायग्राम में देखिए उसको क्या नेम दिया गया है, इट इज नोन एज यूरेथ्रा। ओके बेटे, देन वो कहता है कि किडनीज जो है अगर आप उसके कलर की बात करते हैं, देन दीज किडनीज आर समवट रेडिश ब्राउन, एंड व्हाट अबाउट देयर शेप? तो दे हैव बीन शेप्स, ठीक है, राजमा शेप, इस तरह की इनकी शेप रहती है। और कहाँ पे प्रेजेंट है? तो देखिए आप जब लोकोमोशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा योर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सो मेनी रीजन्स, और उसमें थोरैसिक रीजन जो आपका थोरैक्स वाला पार्ट होता है, उसके बाद लंबर वर्टिब्रे आ जाते हैं। ठीक है बेटे, उसके बाद एब्डोमिनल पोर्शन आ जाता है। तो कहते हैं कि किडनीज जो है वो रेडिश ब्राउन बीन कलर स्ट्रक्चर्स हैं, और कहाँ पे प्रेजेंट हैं? तो दे आर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ द लास्ट थोरैसिक एंड द थर्ड लंबर वर्टिब्रे। ठीक है, तो वर्टिब्रिया जो है वो स्पाइनल कॉर्ड्स जो हैं उसकी बोन से रिलेटेड टर्म है। तो कहते हैं कि आपकी बॉडी के जो थोरैसिक और लंबर वर्टिब्रिया हैं वहां पर आपकी किडनीज जो है वो लोकेटेड है, और क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो जो लंबर वर्टिब्रिया होता है उसके बाद आपकी एब्डोमिनल पोर्शन जो है बॉडी का स्टार्ट हो जाता है। तो वहां तक वो कहते हैं कि आपकी किडनीज जो है वो आपकी स्प्रेड हो रखी है। और हर एक किडनी की अगर आप बात करोगे तो अकॉर्डिंग टू देयर मेजरमेंट कितना रहेगा उसका लेंथ, तो 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ है, 5 to 7 सेंटीमीटर उसकी विड्थ कंसीडर की जा सकती है, और वेट उसका लगभग जो है 120 से 170 ग्राम होता है अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द पर्सन। ओके बेटे, अब वो कहते हैं कि एक किडनी जो है उसको आप ध्यान से देखिए, तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी। ठीक है, कन्वेक्स सरफेस जो है वो तो ये वाली हो जाएगी ना, देखिए ये वाली जो सरफेस है ये कन्वेक्स है, और यहाँ से किडनी इस तरह से अंदर की तरफ मुड़ी हुई है। तो जहां से वो कहते हैं कि इसकी कॉन्केव सरफेस है और जो थोड़ी सी अंदर को बैंड हो रखी है, तो जहां से आपके यूरेटस आपको अराइज होते हुए नजर आ रहे हैं और ये जो ब्लड वेसल्स हैं वो उसके अंदर एंटर होते हुए नजर आ रही हैं, दैट पोर्शन इज नोन एज द हीलम। उसको क्या बोला गया है? हीलम बोला गया। ठीक है, तो there is a notch that is present on the concave surface of the kidney where the blood vessels as well as the ureters they enters, that portion is known as hilum. ओके बेटे, तो ब्लड वेसल्स नर्व्स यहाँ से एंटर करती हैं, यूरेटर्स यहाँ से निकलते हैं। फिर देखिए कहते हैं कि उसके अंदर अगर आप चले जाते हैं, हीलम से आप अंदर चले जाते हैं, तो फिर ये जो हीलम है ये फिर एक ब्रॉड, ठीक है, फनल लाइक स्ट्रक्चर जो है उसमें ये कन्वर्ट हो जाती है।
और ये ब्रॉड फनल लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको उसने क्या नेम दिया है, रीनल पेल्विक्स का नेम दिया। ठीक बेटे, तो ये देखिए यहाँ पे ये नॉच जो थी इसको हीलम बोला गया, और ये जो ब्रॉड फनल लाइक स्ट्रक्चर है इसको उसने रीनल पेल्विक्स बोला है। अब ध्यान से देखिए इस रीनल पेल्विक्स की छोटी छोटी सी ब्रांचेस हैं, तो इसकी जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं दैट इज नोन एज द कैलेसिस। ठीक है, these are actually the projections from the renal pelvis and these are the smaller branches which are known as calyces। अब कहते हैं कि पूरी किडनी की अगर आप बात करेंगे तो the kidney they have an outer layer and that outer layer is a tuft in the form of a capsule। ठीक है, inside the kidney। ठीक है, आउटर लेयर जो है उसको तो कैप्सूल का नेम दिया गया है, और अगर किडनी के अंदर आप देखते हैं तो कहते हैं कि किडनी के अंदर जो ऐसा पोर्शन जो कैप्सूल के बिल्कुल पास में है उसको इसने नाम दिया है कॉर्टेक्स का। और जहां पे वो कहता है कि ये आप कैलेसिस और ये जो आपको ब्रश लाइक सेल्स नजर आ रहे हैं जिनको हम मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं, जहां तक ये मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट हैं वो वाला पोर्शन जो है किडनी का उसको मेडुला बोला गया। ठीक है बेटे, आप ध्यान से देखिए मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में भी सम स्पेसेस आर देयर, तो ये स्पेसेस जो है उसमें भी कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो है वो चला गया। देखिए यहाँ पे एक और डायग्राम आपको इनलार्ज करके दिखाया है। ठीक है, फिगर नंबर 19.2 को देखिए, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी, सी दिस वन। तो दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द किडनी विच इज नोन एज कैप्सूल, इट इज अ टफ वन। और उसके नेक्स्ट उसकी इनर लेयर है, और इनर लेयर की जो बिल्कुल पास वाला पोर्शन है दैट इज नोन एज द रीनल कॉर्टेक्स। रीनल वर्ड इज ऑलवेज यूज्ड फॉर किडनी। और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ये कैलेसिस वाला पोर्शन नजर आ रहा है, जहां मैं कर्सर आपको दिखा रही हूँ वो उसका रीनल पेल्विक्स है विच इज अ फनल लाइक स्ट्रक्चर। और रीनल पेल्विक्स की देखिए छोटी छोटी सी ब्रांचेस है, दीज आर नोन एज कैलेसिस। और कैलेसिस में से इस तरह से ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स जो है वो आपको नजर आ रहे हैं, तो ईच ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स जो है उनको मेडुलरी पिरामिड्स कहा गया है। और इन मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन्स जो कि इनकी फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं। ओके बेटे, तो देखिए यहाँ पे कॉर्टेक्स लिखा है, और ये कॉर्टेक्स जो है जहां जहां आपके मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में खाली स्पेसेस है दैट कॉर्टेक्स विल आल्सो एंटर इन दीस स्पेसेस। ठीक है, तो द इनर पोर्शन अप टू द मेडुलरी पिरामिड, that inner portion of the kidney is actually known as the what you call medulla. So renal cortex that is present at the periphery and renal medulla that is present in the central portion that also contain the calyces, ठीक है, hilum as well as the medullary pyramids। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको कैलेसिस जो है उसको जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है बेटे, उसको रीनल कॉलम का नेम दिया गया है। ये आपको मेडुलरी पिरामिड्स नजर आ रही है। फिर आपको देखिए यहाँ पर कॉर्टेक्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, और रीनल कैप्सूल वर्ड किडनी के लिए यूज कर लेते हैं इसकी आउटरमोस्ट लेयर के लिए। देन आर्टरी दैट एंटर्स इनटू द किडनी इज नोन एज रीनल आर्टरी, एंड द वेन, ठीक है, दैट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम द किडनी दैट इज नोन एज रीनल वेन। और इसके अलावा जो है, ठीक है, वन फनल लाइक स्ट्रक्चर इज देयर दैट इज नोन एज रीनल पेल्विक्स, and these ureters they comes out from this hilum like portion, and you know that they later join what, they later join the urinary bladder। ओके, एक बार फिर से यहाँ पे आ जाएंगे सभी स्टूडेंट्स, तो आपको मैंने सारे जो इसके लेबल्स हैं वो आपको क्लियर कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे at the top of each of the kidney one gland is present and that is known as the adrenal gland। ठीक है, तो when you have learned that chapter last year in 10th class regarding the hormones, तो आपको एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में बताया गया था। तो दिस एड्रिनल ग्लैंड्स, वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ ईच ऑफ योर किडनी। ओके बेटे, रीनल आर्टरी इज देयर, देन रीनल वेन इज देयर, देन यूरेटर्स दे कम्स आउट, दे जॉइन द यूरिनरी ब्लैडर। देन उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे आपको वेन्स एंड आर्टरीज एंटर होते हुए नजर आती हैं। ठीक है, दिस इज इंफीरियर वेना केवा because it collects blood from the lower portion of the body. Then this is the medulla portion where the medullary pyramids are there, and that portion which is near to the innermost wall of the kidney that is known as the cortex basin। Okay students, अब यहाँ पे आपको एक टर्म यहाँ पे उसने दी हुई है, columns of botany। ठीक है, botany is the name of the scientist, so the scientist botany they have explained these columns। ठीक है, तो उसने क्या कहा था जो साइंटिस्ट बॉटनी थे, the cortex it extends it in between the medullary pyramids as renal columns। तो कहते हैं कि ये एक एक तो मेडुलरी पिरामिड है इस तरह से, पर ये देखिए कि between these medullary pyramids some space is there। ठीक है,
तो ये स्पेस जो था इसको फर्स्ट टाइम इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय द साइंटिस्ट बॉटनी। सो उन्होंने कहा कि कॉर्टेक्स का वो वाला पार्ट जो कि मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में चला गया है, दैट इज एक्चुअली नोन एज द रीनल कॉलम्स, and these renal columns they are first observed by the scientist botany. That's why it is known as columns of botany. So if you have to define columns of botany, so these are the renal columns that are the actually the space that is present between the medullary pyramids, and it is actually the part of the cortex. Okay बेटे, अब वो कहते हैं कि each kidney has nearly 1 million complex tubular structures and these are known as the nephrons. ठीक है, these nephrons they are the structural and functional units of the kidney. तो nephrons जो है वो उसके filtering units है, ये वही चीज है जहां पे क्या बनना है, यूरिन बनना है। अब कहते हैं कि हर एक नेफ्रॉन की अगर आप बात करोगे तो each nephron has how many parts? 2 parts. ठीक है, one is the glomerulus and another one is the renal tubules. तो broadly हर एक नेफ्रॉन के 2 कंपोनेंट होते हैं, one is known as glomerulus and another is known as renal tubule. कई बार हम वर्ड यूज करते हैं ग्लोमेरुलस के लिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कुछ और चीज नहीं है, ये क्या है, इट इज द क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज। ये क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज हैं जो एक्चुअली किसकी ब्रांचेस हैं, एफरेंट एट्रियोल की ब्रांचेस हैं। आपको पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि हार्ट में से आर्टरीज ब्लड लेके जाती हैं, and these arteries they are further divided into some narrow lumen arteries which are known as arterioles, and ये arterioles जो हैं जब इन्होंने किसी सेल्स या टिश्यूज में एंटर करना है तो इनकी और फाइन ब्रांचेस हो जाती हैं जिनको कैपिलरीज कहते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि एक हमारे पास एफरेंट एट्रियोल है जो क्या करती है, बॉडी में से ब्लड लेकर आती है और इसकी आगे काफी सारी ब्रांचेस हो गई हैं। तो ये क्लस्टर ऑफ ब्रांचेस जो है इनको क्या बोला गया है, ग्लोमेरुलस बोला गया। ओके बेटे, तो ये जो ग्लोमेरुलस है ना उसमें कैपिलरीज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है। तो देखो ये ब्लड जो है वो किडनी के पास क्यों आया है, तो आपको मालूम है दिस ब्लड इज एक्चुअली द व्हाट काइंड ऑफ ब्लड, इट इज अ डीऑक्सीजनेटेड टाइप ऑफ ब्लड। ठीक बेटे, अब वो कहते हैं कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट है। तो किडनी ने क्या करना है, उन नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है उनको फिल्टर करने की कोशिश करनी है। ठीक, जो कुछ आयंस हो सकते हैं, तो मोस्टली उसमें चीफ कंपोनेंट जो है वो यूरिया होता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और यहाँ पे बताई हुई है, नीचे आपको नेफ्रॉन का डायग्राम नजर आ रहा है। द रीनल ट्यूब्यूल्स बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। अभी आपको बताया कि एक तो उसके अंदर ग्लोमेरुलस है, तो ये जो आपको कप लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, उसके बीच में जो आपको क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज नजर आ रही है वो एफरेंट एट्रियोल की ब्रांचेस हैं जिसको ग्लोमेरुलस बोला जाता है। ठीक है बेटा, ये बिगर आर्टरी जो है उसको एफरेंट एट्रियोल बोला, ये किडनी के अंदर एंटर हुई एंड फाइनली डिवाइडेड इनटू सो मेनी ब्रांचेस एंड दीज आर नोन एज द cluster of capillaries or tuft of capillaries called glomerulus. And this glomerulus, it is present inside a cup-like structure and that is known as the Bowman's capsule. ठीक है, तो ये कप-like structure को Bowman capsule कहा गया है। तो Bowman capsule है ना, वो भी किसके अंदर आ जाता है, रीनल ट्यूब्यूल्स में आ जाता है। अब देखिए Bowman capsules जो है उसका नेक जो है ना वो थोड़ा सा बेंट है। ठीक है, तो bent neck of the Bowman's capsule it is actually known as the paroxysmal convoluted tubule. ठीक है, तो इतना सा पार्ट जो बेंट हो रखा है Bowman capsule का जो नेक लाइक पार्ट है उसको paroxysmal convoluted tubule बोला गया है, या फिर शॉर्ट में आप उसको PCT कहेंगे। ओके बेटे, आप कहते हैं कि ये जो PCT जो है ना उसके बाद आगे जाकर ये एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो है बेंट हो जाता है। ठीक, तो बोमेन कैप्सूल जहाँ पे आप कह सकते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड जो है उसी का फर्दर एक्सटेंशन है। तो इसको उसने पूरा हेयर पिन लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको हैनलीज लूप कहा गया है बिकॉज दिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय द साइंटिस्ट हैनली। ठीक, तो हैनलीज लूप जो है ना उसके 2 पोर्शन है, वन इज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द हैनलीज लूप, मींस हैनलीज लूप का वो पार्ट जो नीचे की तरफ जा रहा है दैट इज नोन एज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द हैनलीज लूप, and that portion of the Hanel's loop which moves upward that is known as the ascending limb of the Hanel's loop. Okay बेटे, फिर ये Hanel's loop जो है उसका descending limb it is again develop into a highly folded structure and that portion of the renal tubule it is known as the distal convoluted tubule. अब देखिए distal convoluted tubule जो है वो फिर आगे जाके wider ducts के अंदर ओपन होता है and that wider ducts are known as the collecting duct. इस तरह से बड़े बड़े कलेक्टिंग डक्ट्स हैं
वो यूरिन को कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं. Then you know that a special type of reflex, it finally reaches the urinary bladder. ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट्स आगे यूरिनरी ब्लैडर के साथ एसोसिएटेड है, इनसे यूरेटस ब्लड ले लेते हैं, नहीं यूरिन ले लेते हैं, और उसके बाद वो यूरिन किस में चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में. ठीक है, पर वो कहते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके अंदर until the urinary bladder it gets filled with the urine. ठीक है, kind of a reflex, it reaches the urinary bladder, it dilates the smooth vessels of the urinary bladder and then the urine is excreted out from your body. ओके बेटे, अब वो कहते हैं कि एक चीज आपको नजर आ रही है येलो कलर में, तो आपको क्या नजर आ रही है, आपको रीनल ट्यूब्यूल्स नजर आ रही हैं, और रेड कलर में वुमेन कैप्सूल के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, ग्लोमेरुलस नजर आ रहा है. पर देखिए इस ग्लोमेरुलस की आगे फर्दर जो कैपिलरीज हैं वो इस हैनलीज लूप को प्लस पीसीटी को डीसीटी जो है उसके साथ साथ पैरेलल चल रही है. ठीक है, तो कहते हैं कि हर एक जो लिम्ब है ना रीनल ट्यूब्यूल्स का, वो ये ब्लड वेसल्स जो हैं उनके साथ पैरेलल वे में रन कर रहा है. तो इसका मतलब ब्लड जो है उसके अंदर प्रेजेंट जो भी नाइट्रोजेनियस वेस्ट है वो इन रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर जाता रहता है बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स. तो इस तरह से एक्सक्यूज मी राजवंत मैम. हाँ जी राजवंत मैम, बच्चों की नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है. ओके मैम, नो प्रॉब्लम, I will end the meeting, ma'am. No problem is there. Okay, ma'am. हाँ जी.